Hello students, once again welcome back to the YouTube channel. I welcome you all to the channel again. So today in this video we are going to discuss Periodic Assessment 1 sample practice paper for class 9 IT 402. And the chapters included in this video are Communication Skills and Self-Management Skills from Part A, Introduction to IT and ITS Industry from Part B, and Data Entry and Keyboarding Skills from Part B. As you know that the book of IT is divided into two parts, part A employability skills and part B subject specific skills. So this paper, sample paper from the practice for PA1 exams or the unit test exams has been formed based upon the pattern of division of two types of parts, employability skills and subject specific skills. Now let us see the paper and its pattern. The exam is of 1 hour duration and it is of 20 marks, and the general instructions are there are total 15 questions in this paper and it is divided into two parts, part A and part B. Part A is employability skills and part B is subject specific skills. And the part A is of 6 marks, 2 plus 4 marks, and part B we have taken of 14 marks, that is 2 plus 4 plus 8. The student has to do the questions as per the instructions given in the parts, as there are internal choices, and the marks allotted are mentioned against each part. And all question a student must attempt in the particular order. So let us see how the questions have been framed. So in the case of the paper, we have taken part A of 6 marks, in which we are having 2 marks 1 mark question and 2 marks question answers, in which there are total 3 questions in which the student has to attempt any 2. So 2 questions of 2 marks become 4 marks. So 6 marks are there of employability skills and 14 marks for the subject specific skills, right? Now first question is, what is the process called when a receiver communicates his or her response back to the sender? जब भी एक रिसीवर अपना रिस्पॉन्स सेंडर को वापस भेजता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और कम्युनिकेशन चैनल। एनकोडिंग का मतलब होता है किस तरह से हम अपने मैसेज को भेजते हैं, किस फॉर्म। डिकोडिंग का मतलब होता है रिसीवर उसे किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। फीडबैक जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट जो हमारा फीडबैक होता है दैट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर टू द सेंडर। एंड कम्युनिकेशन चैनल हमारा वो मेथड होता है जिसके थ्रू हमारा मैसेज भेजा जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन और लैपटॉप और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज फीडबैक, राइट? सो हियर वी आर हैविंग द आंसर एज फीडबैक, ठीक है। Now the next question is, dash inculcates confidence within an individual to face and handle different situations in life. एक पर्सन के अंदर क्या चीज कॉन्फिडेंस को इनकलकेट करती है? एक पर्सन के अंदर किस चीज से कॉन्फिडेंस इनकलकेट होता है जिसकी हेल्प से द पर्सन कैन हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ? सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ केयर, फ्रीडम और सेल्फ मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी सेल्फ मैनेजमेंट। What is the answer? Self-management. Because when a person knows how to manage his or herself, the person can handle the difficult situations in life और person जो है वो confident बन जाता है। Self hatred इससे बिल्कुल opposite हो गया। Self care करना that is also good, but question से apt match नहीं करता है। Freedom is also fine, but the main answer will be self-management. Now the third question is, write the self-management skill that is represented when you volunteered for a role play in the class. इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है अगर कोई स्टूडेंट क्लास में खुद से अपनी विश से किसी प्ले के लिए पार्ट लेना चाह रहे हैं। सो दैट इज योर सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि व्हेन यू आर विलिंगली डूइंग समथिंग, जब आपका खुद से किसी चीज को करने का मन होता है और आपको कोई कह नहीं रहा है या किसी के डराने से आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू लव डूइंग इट। So that is known as self-motivation. So when a student is volunteering for a role play in the class, the student is voluntarily doing it. So that is self-motivation, right? Now we come to the next question, that is question number 4. Question number 4 says, explain the elements in the communication cycle. Communication cycle में क्या क्या elements रहते हैं? So if we talk about the elements in the communication cycle, किस चीज से मिल के बनी है? First is sender. सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है। जैसे कि क्लास में अगर आपको टीचर पढ़ा रही हैं तो टीचर इज द सेंडर एंड द स्टूडेंट्स आर द रिसीवर। फिर होता है आपका आइडिया या मैसेज, किसी भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या कोई थॉट जो आप एज अ ओपिनियन या
किसी भी मैसेज के फॉर्म में बता रहे हैं, दैट इज द आइडिया, यानी कि टॉपिक जिसके बारे में बात की जा रही है। द नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल स्टूडेंट्स वो मीडियम होता है जिससे कि कम्युनिकेशन की जाती है, जिससे सेंडर अपनी बात रिसीवर को बताता है, जैसे कि इट कैन बी अ मोबाइल फोन, इट कैन बी अ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, और इट कैन बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो फीडबैक को जो सेंडर के दिए हुए डेटा को रिसीव करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, दैट इज नोन एज रिसीवर। एंड फीडबैक क्या होता है? द रिप्लाई विच इज गिवन बाय रिसीवर टू द सेंडर। क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है, टीचर इज द सेंडर, स्टूडेंट्स आर द रिसीवर। टीचर ने अगर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट ने उस टॉपिक को समझ के अगर टीचर को वापस से जो आंसर दिया, तो इस एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ सकते हैं तो स्टूडेंट ने टीचर को वापस आंसर दिया, दैट इज नोन एज फीडबैक। ठीक है, आप देखते होंगे जब भी आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या आप ट्रैवल करते हैं ओला या उबर से, तो वहां पे आपसे फीडबैक मांगता है, सो दैट इज योर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? So these are some of the elements of the communication cycle. Next we are having is question number 5. List and explain any 4 self management skills. हमें कोई भी 4 self management skills बताने हैं कि self management skills कौन कौन से हो सकते हैं। Now the 4 self management skills are, सबसे पहला हमारा है self awareness. Self awareness का मतलब होता है कि हमें अपने बारे में पता होना, our likes, our dislikes, हमारी personality कैसी है, and what are our strength and weaknesses, that is known as self awareness. Second skill is self motivation. Self motivation का मतलब होता है when we are doing anything without anyone telling us to do. हम बिना किसी के कहे हुए अगर किसी काम को कर रहे हैं, that is self motivation. इससे हम पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जेटिक और एनकरेज भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है वी आर एबल टू कंट्रोल आर इमोशंस, आर थॉट्स एंड बिहेवियर इन द फेस ऑफ टेम्पटेशंस एंड इम्पल्सेस। कभी भी हमारे सामने कोई डेंजरस सिचुएशन या कोई अलग सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पे हम अपने इमोशंस को, थॉट्स को और हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रख रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ कंट्रोल। तो ये भी किसका पार्ट है? सेल्फ मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि कोई भी हमारे सामने अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, सो वी आर फियरलेस इन दिस सिचुएशन एंड वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है? वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, वी आर फियरलेस एंड फाइंडिंग द सोल्यूशन टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हमने यहाँ पे 4 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़े, सेल्फ अवेयरनेस, self motivation, self control and problem solving. Okay, now the next question is question number 6. It says explain how staying happy with small things helps to build the self confidence. If you are happy with the small things, how your confidence gets increased, that you need to tell. So students, when we are happy with the small things, we see the world and yourself, means ourself, in a more positive light. जब भी हम हैप्पी होते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, जिससे कि इट हेल्प अस टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटीज। हम ये जान पाते हैं कि वी कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो हमें लगता है कि एवरीथिंग एल्स विल बी रॉन्ग टू, सो वी नीड टू बी पेशेंट इन दैट केस एंड वी कैन बी हैप्पी ऑन स्मॉल थिंग्स लाइक विनिंग अ मैच और स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज now we have part B, that is subject specific skills. The division is that is 1 mark 2 questions, जिसमें आपके 3 हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। देन आपके 2 मार्क्स के वी आर हैविंग 3 क्वेश्चंस जिसमें से आपको अगेन 2 अटेम्प्ट करने हैं। देन आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से अगेन आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 1 mark 2 questions 2 marks, 2 marks 2 question 4 marks and 4 marks 2 question 8 marks. तो ये आपका जो पेपर है that becomes of 8 marks, right? Now this is total of 14 marks and 6 marks is part A. अब part B को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले the questions of 1 line and 1 word. Computer science has led to the development of artificial intelligence in the form of dash. कंप्यूटर साइंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हुई है वो किस फील्ड में हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, वन इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, वन इज AI, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग टर्म है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर हम किसी भी
आर्टिफिशियल थिंग जैसे कि रोबोट्स हो गए, अलेक्सा है, सीरी है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। यानी कि आर्टिफिशियली अगर हम किसी को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि जो मशीन्स हैं वो ह्यूमंस की तरह सोच पाए और वर्क कर पाए, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये किस फील्ड में आ रहा है? रोबोटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और एनएलपी, नेशनल लर्निंग पॉलिसी। तो बेसिकली ये आपका आ रहा है इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोबोटिक्स, राइट? Next is question number 8. There should be at least dash inches of distance between your eyes and the computer screen. आपकी eyes के बीच में और computer screen के बीच में कितने inches का distance होना चाहिए? 5 to 10, 20 to 30, 0 to 5 और 50 to 60. So between your eyes and the computer screen there should be at least 20 to 30 inches of distance. ठीक है? Next is Yashika is new to rapid typing software. She wants to check the accuracy, speed, slow keystroke, common errors, etc. in a single window. Suggest her how to do about it. तो यशिका इज वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो आप सबने पढ़ा है, जिसमें आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। तो उसे सिंगल विंडो में एक्यूरेसी, स्पीड, कितना स्लो टाइप किया या क्या क्या एरर्स आ रहे हैं वो सब चेक करने हैं। तो वो कैसे कर सकती है? आइदर द आंसर इज शी कैन चेक इट इन द रिजल्ट विंडो और द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स विंडो। या तो वो रिजल्ट विंडो में जाके चेक कर सकती है लेसन को कंप्लीट करने के बाद, या फिर जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स विंडो होती है वहां पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, एक्यूरेसी, की स्ट्रोक्स, ऑल द थिंग्स। तो शी कैन चेक देयर आल्सो। सो द आंसर विल बी शी कैन चेक इट इन रिजल्ट विंडो और द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is a short answer question. What is outsourcing? It has two parts and explain video conferencing. तो स्टूडेंट्स आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्स कर देना, यानी कि बाहर की किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम दे देना। तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके काम को ऑपरेट और मैनेज करेगी और उनके बिजनेस के कुछ पार्ट को, वर्क को परफॉर्म करेगी ताकि वो काम बहुत एक्यूरेटली और विद इन लेस टाइम किया जा सके, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है। अब कंपनी को काम करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, उसका बहुत सारा काम है। तो कंपनी ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का काम दे दिया। वो उनको पे करेगी उसके लिए, तो उनके पास जो एम्प्लॉयज़ आएंगे वो फिल्टर्ड एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा और कंपनी को उन एम्प्लॉयज़ को हायर करने में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने वो काम किसको दे दिया, दूसरी कंपनी को। तो वो उन्हें अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करके देंगे एंड उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देंगे। सो दैट इज नोन एज आउटसोर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, एक्सप्लेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि जब आप फेस टू फेस किससे कम्युनिकेट कर पाते हैं बट नॉट एट द सेम प्लेस बट सिटिंग एट द डिफरेंट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में रहते हैं एंड वन ऑफ योर रिलेटिव और योर फ्रेंड इज इन यूएसए, तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनसे आप वीडियो एज वेल एज ऑडियो के थ्रू बात कर सकते हैं, एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. So that is known as video conferencing, that it enables the users at different locations to hold face-to-face meetings without moving to a single location with the help of computer and internet. Basically, जब कोविड के टाइम पे टीचिंग की जा रही थी तो स्टूडेंट्स और द टीचर्स यूज मैनी एप्स लाइक द Zoom ऐप और द गूगल मीट ऐप. तो दैट वाज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें पिक्चर भी थी, वीडियो भी था, एज वेल एज ऑडियोज. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how errors are indicated with the help of different colors in the error overview tab. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई लेसन टाइप करते हैं इस अपने रैपिड टाइपिंग. Now the next question is question number 11. How errors are indicated with the help of different colors in the error overview tab. तो स्टूडेंट्स, ये टैब कब आता है? जब भी आप कोई लेसन टाइप करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट विंडो आती है उसके अंदर 3 टैब आते हैं. नेक्स्ट स्टेप, डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड एरर्स ओवरव्यू टैब. एरर्स ओवरव्यू टैब में बेसिकली हम अपने एरर्स को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो उन कलर्स के बारे में बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज कलर्स. तो अगर हम उन कलर्स की बात करें तो वी आर हैविंग द ग्रीन कलर विच इंडिकेट्स द करेक्ट कैरेक्टर, यानी कि आपने जो टाइप किया है वो आपने ठीक टाइप किया. ठीक है, तो ग्रीन कलर का मतलब है व्हाटएवर यू हैव टाइप्ड इज करेक्ट.
येलो कलर का मतलब है कि आपने टाइप तो ठीक किया है बट यू हैव एक्सीडेड द गिवन टाइम फ्रेम। देन आपका रेड कलर शो करता है कि आपने जो भी टाइप किया है दैट इज इनकरेक्ट, यू हैव टाइप द इनकरेक्ट कैरेक्टर। एंड लास्ट इज द ऑरेंज कलर जो इंडिकेट करता है कि जो आपने टाइप किया है कैरेक्टर दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द टाइम हैज ऑल्सो बीन एक्सीडेड। सो वी आर हैविंग 4 कलर्स इन द एरर्स ओवरव्यू टैब जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन फॉर करेक्ट कैरेक्टर, रेड फॉर इनकरेक्ट, येलो का मतलब टाइम फ्रेम हैज बीन एक्सीडेड एंड ऑरेंज का मतलब कैरेक्टर भी इनकरेक्ट है और आपका टाइम फ्रेम भी एक्सीड हो गया। So this is how the colors represent the different things in the errors overview tab. So with this we have done question number 11. Now we have question number 12. Name and explain any 2 tabs of result window. अभी हमने डिस्कस किया कि रिजल्ट विंडो में टोटल 3 टैब्स होते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप, डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड एरर्स ओवरव्यू टैब। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए कि आपको 2 या 3 टैब करने हैं तो यहाँ पे हमने आंसर में दोनों या तीनों टैब लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सबसे पहला हमारा टैब है नेक्स्ट स्टेप। अब ये टैब आपको सजेस्ट करता है कि या तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेसन, या तो आप नेक्स्ट लेसन पे जा सकते हैं या फिर यू कैन ट्राई अगेन। गो टू नेक्स्ट लेसन का मतलब है कि जो आपने लेसन टाइप कर दिया उससे नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे, वो आपको उसके अलग कैरेक्टर्स और डिजिट्स दिखाएगा। और अगर आप चूज करते हैं ट्राई अगेन तो करंट लेसन जो आप टाइप कर चुके हैं आप उसे दोबारा से टाइप कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ नेक्स्ट स्टेप टैब। एंड द सेकेंड वन इज योर डिटेल स्टैटिस्टिक्स। डिटेल स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये टैब हमें लेसन के बारे में थिंग्स को बताता है, जैसे कि व्हाट वाज द टाइपिंग स्पीड, एरर्स क्या थे, स्लो डाउन कैरेक्टर्स क्या थे फॉर ईच कैरेक्टर और द की स्ट्रोक। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डिटेल्ड परफॉर्मेंस आपको बताएगा। एंड द लास्ट इज द ओवरव्यू टैब जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। जो भी एरर्स टाइपिंग के टाइम पे हमने किए हैं इट शोज ऑल दोज एरर्स, ठीक है। So these are the 3 tabs which are there in the result window. If the question comes for the 2 tabs, you can explain any of these 2 tabs, right? Now we have the next question as question number 13. Discuss the various types of keys available on the computer keyboard. Computer keyboard पे जो different type की keys होती हैं उन्हें आपको explain करना है। तो as you have seen students, there are different types of keys on the keyboard. सबसे पहले हम बात करते हैं alphabet keys की। A to Z are alphabet keys, total 26. Basically alphabet keys से आप letters, words और characters को type कर सकते हैं। Then we have the numeric keys which help us to type the numbers from 0 to 9. They are total 10 in number और इसकी help से हम roll number, date of birth ये सब चीजें type कर सकते हैं। Third type of key होती है हमारी function key, that is from F1 to F12 और हर function key का अपना एक specific task होता है। देन हमारे पास एरो और नेविगेशन कीज होती हैं जिसकी हेल्प से आप अपने पेज पे अप, डाउन, लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। देन वी आर ऑल्सो हैविंग पंक्चुएशन कीज ऑन द कीबोर्ड जिसकी हेल्प से आप पंक्चुएशन मार्क लगा सकते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉलन, सेमी कॉलन, ऑल दीज एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। फिर ये जो 2 कीज हैं होम रो कीज एंड गाइड कीज, ऑल्दो ये होती है आपकी अल्फाबेट कीज में ही है लेकिन ये टाइपिंग में बहुत हेल्पफुल होती है because जब भी हम टाइपिंग सीखना स्टार्ट करते हैं we have to start from the home row keys, that is A S D F of left hand side and J K L semicolon of right hand side, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी बेस पोजीशन रखते हैं, फिंगर्स को सबसे पहले आप प्लेस करते हैं और गाइड कीज आपकी होती है F and J। F and J पे कुछ छोटा सा मार्क होता है जिससे कि पता लग जाता है कि यहाँ से आपको टाइप करना स्टार्ट करना है, या आपको गाइड करती है कि आपकी फिंगर्स की पोजीशन कीबोर्ड पे कैसी रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। द क्वेश्चन इज ऑफ अराउंड यू कैन से 4 मार्क्स। तो आपसे अगर वेरियस टाइप्स ऑफ कीज पूछा गया है तो 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 तो आपको लिखनी है, आप 1 या 2 उसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, एरो कीज, पंक्चुएशन कीज, ये तो 5 हो गई। होम रो कीज और गाइड कीज इसी में आ जाएंगी। बाकी आप चाहें तो इसमें कुछ स्पेशल कीज लिख सकते हो जैसे कि स्पेस बार की, बैक स्पेस की, डिलीट की, ऑल दोस। लेकिन सारी स्पेशल कीज के लिए हेडिंग आपकी एक ही रहेगी, दैट इज स्पेशल कीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हिच आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ हेल्थ केयर वेयर IT इज यूज्ड एंड हाउ। IT जो है हेल्थ केयर की फील्ड में कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड है दैट इज टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन में क्या है कि जो लोग बहुत दूर रहते हैं उन्हें अगर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए या मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए
आज के टाइम पे वो उनके घर पे आ जाती है, उन्हें जाना नहीं पड़ता। वी आर हैविंग सो मेनी एप्स फॉर दैट वन, जैसे कि नेटमेट्स, अपोलो 24/7 एंड फार्मेसी। ठीक है, उसके अलावा वी आर हैविंग कंप्यूटर कंट्रोल मेडिकल डिवाइसेस। कोई भी अगर हमें कोई भी अगर डिजीज को डायग्नोस करना है तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि एक्सरे है, ईसीजी है, सीटी स्कैन है। आज के टाइम पे हमारे पास शुगर की और बीपी की मशीन्स घर पे अवेलेबल रहती हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी? ओनली इन द हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम इन्हें परचेज करके अपने घर पे रख सकते हैं। बेसिकली द स्मॉल मशीन्स लाइक द शुगर मशीन्स और द बीपी मशीन्स। और बाकी जो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी एक्सरे, ईसीजी एंड सीटी स्कैन जो फैसिलिटीज हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी, नाउ दे आर अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स। पहले के टाइम पे जो पेशेंट का रिकॉर्ड्स था, कौन आया, कब आया, पास हिस्ट्री क्या है, वो सारा फाइल्स में अरेंज करके लिखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे सारा डेटा आपको कहाँ मिलेगा? इन द कंप्यूटर्स। तो ये क्या है? कोई भी अगर पर्सन ट्रीटमेंट के लिए आया है, उसकी जो पास हिस्ट्री थी तो वो चेक की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द डेटा रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ आईटी हैज हेल्प इन द हेल्थ केयर। नेक्स्ट इज हाउ हैज आईटी हेल्प इन डिजिटाइजिंग द म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज। अब आईटी ने म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज को डिजिटाइज करने में, यानी कि वहाँ पे कैसे लाइब्रेरीज में और म्यूजियम्स में कैसे आईटी ने रोल प्ले किया है, दैट वी नीड टू टेल। ठीक है, सो हाउ इट हैज प्लेड द रोल। सबसे पहला काम है ट्रैकिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारी लाइब्रेरीज या म्यूजियम में जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं उनके अपडेटेड रिकॉर्ड्स टाइम टू टाइम उसमें डाले जाते हैं, और यूज़र को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से जाके डायरेक्टली उस प्लेस पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव डिजिटल हिस्टोरिकल डेटा। सेम थिंग कि पहले सारा डेटा फाइल्स में होता था, फाइल्स लॉस्ट भी हो सकती हैं, कोई भी नेचुरल कैलामिटी से खराब हो सकती हैं। लेकिन अब जो लोकेशन एक्सकवेशन ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स या जो हमारी बुक्स का डेटा है वो हम कंप्यूटर सिस्टम्स में मेंटेन करते हैं, जिससे कि उसे ढूंढना ईजी हो जाता है। एंड लास्ट वी आर हैविंग इज ऑनलाइन एक्सेस टू ई बुक्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट स्टेप्स, जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट्स एटलीस्ट इसमें लिखने चाहिए। ठीक है, तो ई बुक्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम ई बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ई जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स डिफरेंट वर्जन्स के पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से आईटी ने म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज में अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, now the next we are having is last question, question number 15. What is touch typing technique? Write any 3 rules of touch typing. ठीक है, टच टाइपिंग टेक्निक क्या होती है और इसके आपको रूल्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, टच टाइपिंग टेक्निक, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, टच टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक जहां पे हम फिंगर से कीज को टच करके टाइप करते हैं, लेकिन कीज को देखते नहीं है। वी ओनली लुक टुवर्ड्स द मॉनिटर स्क्रीन एंड वी टाइप विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। स्टार्टिंग में हमें देखने की रिक्वायरमेंट होती है, बट जैसे जैसे हम पोजीशन सीख जाते हैं फिंगर्स की, तो धीरे 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 टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए हमें सारे कीज की फिंगर की पोजीशन भी लर्न हो जाती है। ठीक है, एंड टच टाइपिंग करने से हमारी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ टच टाइपिंग। सबसे पहले जो आपके फिंगर्स हैं वो बेस पोजीशन पे होनी चाहिए। कौन कौन सी? ASDF, JKL, सेमीकोलन। ठीक है, क्योंकि ये वो कीज हैं, दीज आर द होम रो कीज, जहां से हम टाइपिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जब आप न्यूमेरिक कीपैड के नंबर्स को टाइप करते हैं तो आपके इंडेक्स फिंगर नंबर 4 पे, मिडल फिंगर नंबर 5 पे एंड रिंग फिंगर नंबर 6 पे होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी आपको स्पेशल सिंबल्स टाइप करने होते हैं, जैसे कि @ हैश स्टार, तो आप अपने एक हैंड की कीज को नंबर कीज पे रख सकते हो, और एक जो दूसरे हैंड के लिटिल फिंगर है उससे आप शिफ्ट की को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ द टच टाइपिंग। और एक रूल ये भी होता है कि जब भी आप टच टाइपिंग करते हैं तो डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विच वी हैव डिस्कस्ड related to the sample paper. ठीक है, and here also it is complete now. I hope students the question answers and the pattern is clear to all of you, and I hope this will help you in practicing for your unit test or the PA1 exams. Although the division of part A and part B can differ from teacher to teacher or from, you can say, school to school, but that is a sample paper so that it can help you. I hope you have understood them, students. In case still any doubt is there in any question, you can ask me in the comment section, and please provide your feedback also. If this video has helped you, you can share it with your friends, subscribe the channel and like the video also. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.